पार्टी होनी चाहिए, दैट इज हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, हमें कितनी पार्टीज होनी चाहिए इन एन आइडियल डेमोक्रेसी, पार्टीज कितनी होनी चाहिए। अभी देखो it is raining outside, so that there may be some problem, okay, but I will repeat again and again so that nothing will get loose, nothing will get missed, okay, so don't take any tension regarding that. Okay, page number 75 from your book. How many parties should we have, that we are going to study. So in an ideal democracy, how many parties should we have, कितनी parties होनी चाहिए ideal democracy के हिसाब से, वो हम पढ़ने वाले हैं, that we are going to study. So let us see how many parties should we have. ठीक है, so it's so happened that in democracy any group is free to form a political party. ठीक है, डेमोक्रेसी में कोई भी जो ग्रुप है तो वो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकता है. ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर एनी पर्सन कि पॉलिटिकल पार्टीज ये बना नहीं पाएगा, वो बना नहीं पाएगा, सो नथिंग लाइक दैट. सो एनी पर्सन, इफ I want that I should have my own political party, so I may have, तो मैं बना सकती हूँ. So in any democracy, a person is free to have political party. So let us see this with this. Okay, थोड़ा ध्यान में, there are large number of political parties in India. So nearly 750 political parties are registered. Okay, with the Election Commission of India, 750 political parties are registered. Underline कर लो इसको, ताकि मतलब टोटल रजिस्टर्ड पार्टीज कितनी है और एग्जैक्टली इन्फ्लुएंस में पार्टीज कितनी है, सो एवरीथिंग शुड बी कैलकुलेटेड. ठीक है, ओनली हैंडफुल ऑफ दे आर इफेक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन. सो टॉपिक क्या है कि हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव. So in India, how many parties are there? 750 parties are registered with Election Commission, and these all parties, they are not serious contenders of election. सारी parties election में हिस्सा नहीं ले रही है, contenders in election. Only handful of political parties, they are in competition and they part in election, they form government after winning. So how many major parties should we have? So see, there is classification of party system. I have shared screen with you. See this. In some party, only one party is allowed to control and run government. So any one party is whole and soul for that country. So this is called one party system. So that is only single party is there. That single party is there to control and run the government. And electoral system does not permit free competition for power. Okay, in class 9th, we noted down that in China, only Communist Party is allowed to rule. So legally speaking, people are free to form political party, but electoral system does not permit such people to form political parties. इलेक्टोरल सिस्टम ऐसे लोगों को परमिट कर ही नहीं रही है कि वो एक से ज्यादा पार्टीज वहां के सिनेरियो में, पॉलिटिकल सिनेरियो में आए ऐसे. सो तो इसके लिए मतलब वी कैन नॉट कंसिडर्ड एज दिस वन पार्टी सिस्टम इज अ गुड ऑप्शन बिकॉज इट इज नॉट डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक है ही नहीं ना, कोई भी कैंडिडेट जीते, कोई भी कैंडिडेट हारे, बट फिर भी एक बात पक्की है, कम्युनिस्ट पार्टी इज गोइंग टू बी the government, going to form the government of that country. So that मतलब कोई मतलब ही नहीं निकलता. So in that sense, government जो है, so is not allowing such a free competition of power in one party system. So we cannot
consider one party system or single party system as democratic option for political parties. Okay, कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है तो इसमें टू पार्टीज जो है एटलीस्ट वो होनी चाहिए कि एक पार्टी अपोजिशन में रहे और एक पार्टी जो है वो रूल में रहे, गवर्नमेंट बने. एक पार्टी का गवर्नमेंट बनेगा, अनदर पार्टी विल प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, दूसरी पार्टी अपोजिशन का रोल प्ले करेगी. सो ऐसा हो सकता है. So in some countries, power usually change between two main parties. Let us see now two party system और bi party system. अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, टू पार्टी सिस्टम या बाई पार्टी सिस्टम. कुछ कंट्रीज में पावर कैसा है कि यूजुअली चेंज बिटवीन टू मेन पार्टीज, दो मेन पार्टी में पावर चेंज होता रहता है. सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट, कुछ दूसरी पार्टीज भी है वहां, बट वो जो पार्टीज है वो इतनी ज्यादा बड़ी पार्टीज नहीं है कि वो अकेले दे फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, अकेले विन सपोर्ट विन मेजोरिटी उनके लिए पॉसिबल नहीं है. सो only two major parties, they are contesting election and forming government. So there is serious chance of winning either of this party or that party in these two parties. So such a party system is called two party. थोड़ा ध्यान देना इस पर. वन पार्टी सिस्टम में सिर्फ एक पार्टी है कि वही पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी भी और गवर्नमेंट चलाएगी भी. टू पार्टी सिस्टम में देयर आर टू मेजर पार्टीज, दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, और ये जो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, अदर पार्टीज आल्सो एग्जिस्ट अलोंग विद दिस टू पार्टीज. ये दो पार्टीज के साथ और मतलब दूसरी पार्टीज एग्जिस्ट होती है, कोई डाउट ही नहीं. सो इन दैट सेंस, पर ये इतनी छोटी छोटी ये पार्टीज कि इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट. गवर्नमेंट बनाना, गवर्नमेंट चलाना उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है. सो इन दैट सेंस, सो ये जो टू पार्टी सिस्टम में ये जो दो बड़ी पार्टी है, आइदर एक कौन सी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और दूसरी पार्टी दैट विल प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन का रोल प्ले करेगी दूसरी वाली पार्टी. सो सच इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम. ऐसा जो पार्टी सिस्टम है उसे हम बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम. ठीक है. एग्जाम्पल फॉर टू पार्टी सिस्टम इज यूएसए एंड यूनाइटेड किंगडम्स यूके, Labour Party and Conservative Party Britain. These are two important parties of Britain. Britain के दो important parties है ये, Labour Party and Conservative Party. ठीक है. So ये दो parties के बीच में ही power का exchange होता है. Third that we are going to study. अथर्व पाठक, बेटा mute yourself. अथर्व पाठक. Yes. Maybe you have forgotten to mute. That's why I checked that from where I could listen, I could hear noises. So I reminded. Now let us move to third type of party system, that is multi-party system. Name itself suggests that several parties they compete for power. बहुत सारी parties है multi-party में, सारी party power के लिए compete कर रही है. More than two parties, they have reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others. और कभी कभी क्या है कि या तो ये खुद के स्ट्रेंथ पे, खुद के बल पे, खुद के पावर से they could win election and they could form government, or there is second option, they can form alliance with other party. alliance मतलब क्या, फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाते कि साथ में मिलके काम करेंगे. सो ऐसे अलायंस इलेक्शन के पहले ही बन जाती है मोस्ट ऑफ, या तो फिर इलेक्शन के बाद बनती है. सो वी कॉल इट, बोलेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम. ठीक है. Thus, in India, we have multi-party system. Multi-party system है हमारे यहाँ, और ये सिस्टम में गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन अ कोलिशन. सो इसमें क्या होता है अभी आजकल, यस अलायंस और कोलिशन सेम होता है क्या? कोलिशन गवर्नमेंट और अलायंस गवर्नमेंट? यस यस यस, इट इज सेम. कोलिशन गवर्नमेंट उसका ब्रांड नेम है, और अलायंस मतलब वो साथ में मिलना, दैट इज अलायंस. समझ में आया? यस मैम. ओके.
तो ऐसी ये पार्टी साथ में आती है ये सिस्टम में. गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर. 2-3 पार्टी, 4 पार्टी साथ में आ जाती है. कोलिशन, उनका कोलिशन बनता है, गठबंधन. कोलिशन को हिंदी नेम जो है दैट इज गठबंधन. साथ में मिल के इलेक्शन लड़ना या साथ में मिल के गवर्नमेंट को चलाना, दैट इज कोलिशन. सो अब ये जो सेवरल पार्टीज जो है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम में तो मतलब इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए अगर वो ज्वाइन हैंड्स कर रही है एंड विनिंग पावर, तो इसको अलायंस बोलते हैं, फ्रंट बोलते हैं. मतलब इलेक्शन से पहले इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए या फिर पावर में आने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने के लिए, जब वो अपना अलायंस, फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाते एक दूसरे की तरफ, इट इज नोन एज अलायंस और अ फ्रंट. इसको फ्रंट बोलते हैं. इंडिया में ऐसे 3 मेजर अलायंस है, तीनों को आप लोग अंडरलाइन करेंगे. 2004 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, दैट इज एनडीए. सेकंड वन द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, दैट इज यूपीए. और तीसरा है लेफ्ट फ्रंट. ठीक है. अभी ये तीनों अलायंस में कौन सी पार्टी जुड़ी है, ये मैं आप लोगों को कल पूछूंगी. ठीक है. एवरीबडी शुड फाइंड आउट एनडीए की पार्टीज कौन सी है, देन यूपीए की पार्टीज कौन सी है. सो एवरीबडी शुड फाइंड इट आउट. हर कोई इसको फाइंड आउट करके रखेगा. एकदम सिंपल है, बिल्कुल इजी है. और लेफ्ट फ्रंट में मतलब कौन कौन किसको किसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये तीनों ग्रुप आपको पता होने चाहिए. ठीक है. एक जिम्मेदार नागरिक बोलकर ये आपको मैम पता थर्ड होने कौन चाहिए. बोली? लेफ्ट फ्रंट. थर्ड इज लेफ्ट फ्रंट. उसको ना मराठी में बोलते डावी आघाड़ी. प्रकाश करात, वृंदा करात, इनकी पार्टी वो. ठीक है. तो देखते रहिए इसको. ओके. ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो ये बहुत मेसी. ठीक है. एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ले जा सकता है, दैट लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. ये मेसी है बहुत ज्यादा. ठीक है. मतलब क्या, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है. ये पॉलिटिक्स, इंस्टेबल पॉलिटिक्स देखने को मिलता है. बट ये जो पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम, इसमें अलग अलग ग्रुप के इंटरेस्ट, ओपिनियंस, इनको सभी को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है. एंड सो दैट मल्टी पार्टी सिस्टम प्रूव्स टू बी एन आइडियल पार्टी सिस्टम इन डेमोक्रेसी. सो नाउ अब ये तीनों में से आप सोचेंगे कि विच पार्टी सिस्टम इज बेटर, इसमें से क्या सही है क्या गलत है. सो परहैप्स बेस्ट आंसर इसका क्या है कि ये तो क्वेश्चन ही अच्छा नहीं है. क्यों? क्योंकि अ कंट्री कैनॉट चूज एनी पार्टी सिस्टम. कंट्री कोई भी पार्टी सिस्टम को चूज नहीं कर सकता. ठीक है. इट इवॉल्व्स ओवर टाइम. मतलब जैसे टाइम बीइंग ये जो मतलब पार्टी सिस्टम है, वो इवॉल्व होता है. इवॉल्व होना मतलब क्या, डेवलप होना. एज पर द सोशल पॉलिटिकल एरेना, एज पर द इकोनॉमिक फील्ड, एज पर द कल्चर, एज पर द पीपल, एज पर डाइवर्सिटी. सो एवरीथिंग डिपेंड्स. सो let us see that this party system evolve over a long period of time. धीरे धीरे डेवलप होता है. सो सोसाइटी कैसा है, सोशल रीजनल डिविजन्स कैसे है, हिस्ट्री क्या है पॉलिटिक्स की, सिस्टम क्या है इलेक्शन का. सो इफ वी वांट टू चेंज इट, वी कैनॉट चेंज इट वेरी क्विकली. अगर हमें पसंद नहीं है, हम चेंज करना चाहते हैं, स्टिल इट विल नॉट बिकम पॉसिबल फॉर अस टू चेंज इट. Every country develops a party system that is conditioned by its special circumstances. हर एक जो मतलब कंट्री है, तो वो ऐसा पार्टी सिस्टम डेवलप करता है कि जो उसके मतलब सोशल बैकग्राउंड को, देन कल्चरल डाइवर्सिटी को वो मतलब एकोमोडेट करे, ऐसे टाइप का पार्टी सिस्टम वो चुनते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम इवॉल्व हुआ है क्योंकि यहाँ पर सोशल और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी जो है, तो कोई एक या दो पार्टी या तीन पार्टी से एब्सॉर्ब नहीं होगा. Geographical diversity is also very high. Social geography and social diversity is very also high and also very high. So that this diversity cannot be absorbed in mere two or three parties. So that in a country like India, multi-party system is ideal. Okay. So what type of party system a particular country is accepting it, so it's totally depends upon, ये डिपेंड करता है कि
वहां का बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड कैसा है, रीजनल डाइवर्सिटी कैसा है, ज्योग्राफी कैसा है, एथनिसिटी कैसी है। तो ये सभी को सोच के कोई पार्टी सिस्टम जो है वो अपने आप इवॉल्व होता है। एंड दिस इज व्हाट वी स्टडीड दैट पार्टी सिस्टम। 3 मार्क का क्वेश्चन आता है कि पार्टी सिस्टम क्या है। सिंगल पार्टी सिस्टम दैट इज वन पार्टी सिस्टम, उसको डिफाइन करो, उसके साथ एग्जाम्पल के साथ उसको लिखो, दैट इज वन पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम या बाय पार्टी सिस्टम, यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ उसको पहले डिफाइन करो, फिर एग्जाम्पल के साथ उसको लिखो। और तीसरा मल्टी पार्टी सिस्टम, इसको डिफाइन करो और एग्जाम्पल्स लिखो। सो इन दैट वे दिस विल बी द आइडियल आंसर फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टी सिस्टम। समझ में आ गया ये पार्टी सिस्टम? कोई डाउट है इसमें? मैसेज कर सकते हैं मुझे, डाउट है तो। Okay, I got from Yadnesh, Siddhi, 2, 3 people I got feedback. Thank you, dear students. Now, let us have another national and political parties. Okay, our another topic to discuss is national and political parties. So, let us discuss this topic. You can understand it very clearly and easily what it is. See, this is very shortcut, but in our state or regional party, so you can use this information. See, types of political parties. अभी हम political parties के types पढ़ने वाले हैं, ठीक है? So there are two major types of political parties. दो major type के political parties है. One is national party and another one is state or regional level party. एक national party है और दूसरी regional level. Ma'am, you are not audible. Ma'am, you are muted. Miss, your voice is not audible. हाँ, there was emergency call which I received and so that it muted. Okay. Till that, use read types of political parties. Okay. So in democracy, there are two types of political party. You take out page number 79 from your book. Okay. See, so in all democracies, those democracy which follow federal system. अब चेक करो. It's okay now. Okay, बेटा. So in all democracies which follow federal system, so all democracies in the world who are following federal system or which are following federal system, they have two kinds of political party. There are two types of political parties. Okay. So one political party that is for entire nation. Okay. So one level, one federal unit that stands for whole nation, and other other federal unit that for particular region or particular state. So taking this into consideration, there are national level parties and state level party.
देखो, एक जो सरकार है नेशनल लेवल की, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, तो वो सारे स्टेट्स पर रूल करती है. ओके, दैट गवर्नमेंट इज इफिशिएंट, दैट गवर्नमेंट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल स्टेट्स इन कंट्री. Somebody has unmuted, please check yourself. So, तो नेशनल पार्टीज जो है, तो नेशनल पार्टीज कंट्री के सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, इसके लिए वो इफेक्टिव है. ओके, दैट नेशनल पार्टी दैट टेक डिसीजन फॉर all these states and union territories. एंड दूसरा लेवल है फेडरेशन का, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, दैट इज स्टेट लेवल. स्टेट लेवल में that government is effective for that particular state only. So taking this into consideration, there are two types of political parties, national parties and state parties. तो ये ध्यान में रखते हुए ये दो पार्टीज बनी हैं. ठीक है, तो ये जो पार्टीज है नेशनल लेवल की, उनके जो यूनिट्स है, उनकी जो ब्रांचेस है, ये सारे बहुत सारे स्टेट्स में होती है. ठीक है, सेम पॉलिसी वो फॉलो होती है नेशनल लेवल पर, मतलब जो पार्टी की पॉलिसी बनी, सो दैट पॉलिसी इज फॉलोड इन ऑल स्टेट्स. दैट प्रोग्राम स्ट्रेटेजी दैट इज डिसाइडेड एट नेशनल लेवल, दैट इज फॉलोड इन ऑल स्टेट्स. ठीक है, जैसे अभी बीजेपी की पॉलिसी अगर गुजरात में बनी, ठीक है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने मिलकर बीजेपी के लिए पॉलिसी बनाई, तो वो गुजरात में बनी हुई पॉलिसी, स्ट्रेटेजी, प्रोग्राम दैट इज इवन एप्लीकेबल टू महाराष्ट्र, दैट इज इवन एप्लीकेबल टू तमिलनाडु, आंध्र, देन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मतलब जितना सभी जगह. सो दैट्स व्हाई ये जो सेम पॉलिसीज एंड सेम स्ट्रेटेजीज जो है वो फॉलो करते हैं. ठीक है, हर एक पार्टी जो है कंट्री की, तो उसको इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर करना पड़ता है. इलेक्शन कमीशन लास्ट ईयर पढ़ा था हमने, आई थिंक, मतलब आपको याद होगा, लास्ट ईयर के सिविक्स टेक्स्ट बुक में आपको वर्किंग विथ इंस्टीट्यूशंस, उसमें मतलब ये पार्ट है, इलेक्शन कमीशन वगैरह. सो इलेक्शन कमीशन जो है, तो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर करना पड़ता है. इलेक्शन कमीशन जो है, तो वो सारी पार्टीज को इक्वली ट्रीट करता है, बट जो लार्ज एंड एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज है, so to such a parties election commission offers special facilities. ठीक है, जो बड़ी पार्टीज है, जो एस्टैब्लिश है ईयर्स से, तो ऐसी पार्टीज के लिए इलेक्शन कमीशन ग्रांटेड सर्टेन प्रिविलेजेस, उसको प्रिविलेजेस भी बोल सकते हैं, स्पेशल फैसिलिटीज. जैसे क्या क्या प्रिविलेजेस है, पेपर में आता है, इसका भी अंडरलाइन करो. यूनिक सिंबल मिलता है उनको, जैसे अभी बीजेपी जो है, तो उनका लोटस ही रहेगा. लोटस मतलब तुमने सोचा कि चलो काबरा मिस की एक पार्टी बनाते हैं, ठीक है, और काबरा मिस की पार्टी बना के कि चलो अभी हमें भी सिंबल लोटस ही चाहिए, भले ही मतलब बीजेपी के लोटस को 7 ये है पेटल्स, तो हम 8 वाला लेंगे, बट ये ऐसा अलाउड नहीं है, क्योंकि जो लार्ज एंड एस्टैब्लिश पार्टी का सिंबल है वो उनके लिए रिजर्व होता है. नो अदर पार्टी कैन टेक देयर सिंबल, ये फर्स्ट. देन official candidates of that party, they only they can use that symbol. Then दूसरा privilege उनको ये है कि उनको recognize party, ऐसा मतलब उनको status मिलता है, that these parties are recognized by election commission for election purpose, for contesting election. So इसके लिए इनको recognized political parties बोला जाता है. ये जो इलेक्शन कमीशन है, उसने एक क्राइटेरिया बनाया है कि चलो अभी हमने पार्टी बनाई है, तो मतलब इस पार्टी को चिराग, पाकिस्तान में भी मतलब बोलते हैं डेमोक्रेसी ऐसा, और बोलते हैं वहां पर भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसा, पर पाकिस्तान में सारी गुंडागर्दी है. जनरल परवेज मुशर्रफ तक तो सारा डिक्टेटरशिप चल रहा था. गुड क्वेश्चन यू आस्क. तो मतलब अभी ऐसा, अभी भी बोलते हैं वहां डेमोक्रेसी ऐसे, बट मीन्स पीपल वोंट बिलीव दिस थिंग. ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली क्या है, क्या वहां की पार्टी सिस्टम है, कैसा वहां पर रूल चलता है, सो सारा वन मैन शो है. एक जो कैपेबल इंसान है, वो उसने कुछ रूल लिया कि बाकी के लोग हाँ में हाँ भरते हैं, और बस इंडिया से दुश्मनी निकालते हैं, दूसरा कुछ नहीं पाकिस्तान वालों के पास. सो लेट अस कम टू द पॉइंट कि इलेक्शन कमीशन ने एक क्राइटेरिया दिया है. देखो एक क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा है, ठीक है, एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स. ओके, सो 6% ऑफ टोटल वोट्स वो होने चाहिए, 6% वोट्स उनको मिलने चाहिए. ओके, पूरे वोट्स में से. देन
in the legislative assembly of a state wins at least 2 seats is recognized as state party. तो 6% वोट और लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 सीट उनके चुन के आने चाहिए वो पार्टी के, देन इसको स्टेट पार्टी बोला जाता है. और जो पार्टी की जिसने 6% वोट टोटल लोकसभा इलेक्शन में, मतलब जितने वोट्स है उसमें से 6% वोट टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन के या असेंबली के, एंड 4 स्टेट एज और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट या 4 स्टेट में असेंबली इलेक्शन में 6% वोट आने चाहिए, या विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, लोकसभा में 4 सीट उनके चुन के आने चाहिए. सो सच अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी, उसको नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज करेंगे. सो थोड़ा ध्यान देना, नेशनल लेवल में 4 है, 4 स्टेट में असेंबली इलेक्शन में उनके 6% वोट होने चाहिए, या तो फिर पूरे वोटर्स के 6% वोट. अगर 4 स्टेट का क्राइटेरिया नहीं है, वो पार्टी 1 या 2 ही स्टेट में इफेक्टिव है, तो 1 या 2 स्टेट्स में उतने 6% वोट उनके, मतलब टोटल 1 या 2 स्टेट्स में, सॉरी जनरल 6% वोट्स उनके होने चाहिए, ये पहला. या तो फिर 4 स्टेट में 6% वोट होने चाहिए एंड एटलीस्ट 4 सीट्स लोकसभा में इलेक्ट होके आने चाहिए. सो दैट पार्टी इज नोन एज नेशनल पार्टी, उसको हम नेशनल पार्टी बोलते हैं. एकदम सिंपल सा लॉजिक है, 6% दोनों में सेम है, पर ये 6% वो स्टेट के टोटल वोट्स के 6% और नेशनल पार्टी के 6% पूरे जो मतलब नेशनल लेवल के सारे स्टेट के जो वोटर्स है उनके 6%, ये फर्क है. यहाँ पर मतलब 2 सीट्स इन लेजिस्लेचर, यहाँ पर 4 सीट्स, और यहाँ पर एक और क्राइटेरिया है, 6% अगर वोट वो पूरे इसके नहीं ले पा रहे तो एटलीस्ट 4 स्टेट्स में 6% वोट उनके होने चाहिए असेंबली इलेक्शन में. सो दैट पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी. इसमें कोई डाउट है? सो इंडिया मैम में अगर ये मैम अगर हाँ, किसी बोलो. ने पार्टी फॉर्म की तो वो कौन से लेवल पे फॉर्म होगी? स्टेट लेवल पे फॉर्म होगी ना? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. आपको जनरल इलेक्शंस के लिए पार्टी फॉर्म करनी है और डायरेक्ट जनरल इलेक्शन में कंटेस्ट करना है आपको, तो भी आप फॉर्म कर सकते हैं. तो उसका लेवल क्या है, ये आप जब मतलब उतना वोट लेके उतना मतलब जब आप करके दिखाएंगे तभी उसको नेशनल लेवल का स्टेटस मिलेगा. तब तक वो एक लोकल पार्टी बनी रहेगी, तब तक वो एक जनरल पार्टी मानी जाएगी. हाँ यस बेटा. जो पार्टी मैम जो पार्टी नेशनल पार्टी है वो कभी स्टेट पार्टी भी थी ना, फिर उनको अगर वो बाद में डेवलप हुए फिर वो नेशनल पार्टी बने ना? हाँ, स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हैं, पर जिनको डायरेक्ट जनरल इलेक्शन में मतलब उनको पंचायती राज में या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में, लोकल गवर्नमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, स्टेट के गवर्नमेंट में इंटरफियर नहीं करना है, डायरेक्टली मतलब समवन वांटेड टू स्टैंड फॉर जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा, तो ऐसे में भी वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बोल के, अभी सुरेश जैन क्या था 1992 में जब वो सिनेरियो में आया था, मेरा 10th था या 9th में थी मैं तब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बोलकर चरखा सिंबल था उनका, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बोलकर वो जलगांव से जनरल इलेक्शन में लड़े थे डायरेक्ट. कोई भी पार्टी का मतलब वो तब एंटर नहीं किया था, तो इंडिपेंडेंट मतलब स्टार्ट किया था. सो वैसे ही आम आदमी पार्टी क्या है, पहले लोगों को पता था क्या? नहीं. 2006 में अन्ना हजारे ने जब ये मतलब एंटी करप्शन मूवमेंट जब चलाया, तो उसके बाद ये आम आदमी पार्टी रातों रात फॉर्म हुआ भी और रातों रात नेशनल लेवल का बन भी गया. तो मतलब 5 साल लगे उनको वो प्रूव करने में कि 6% वोट आ रहे हैं, उनका मतलब झाड़ू सिंबल उन्होंने रखा वगैरह. सो इट टुक टाइम, तो टाइम लगता है उसका, बट टाइम लगने के भी टाइम बीइंग फिर धीरे धीरे जब वो रिकॉग्नाइज हो जाते हैं तब वो एस्टेब्लिश पार्टी बोली जाती है, फिर वो भले ही नेशनल लेवल की रहो स्टेट लेवल की रहो. ओके. और कुछ पार्टीज जो है मतलब जैसे फॉर एग्जांपल शिवसेना, मनसे, ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही है, महाराष्ट्र के बाहर इनको कोई पहचानता भी नहीं है. सो ऐसी पार्टीज जो है तो ये प्योरली मतलब नेशनल लेवल की बोल ही नहीं सकते, इनको स्टेट लेवल की है, और ये स्टेट लेवल के लिए ही काम करती है, बाकी स्टेट्स में जाकर या नेशनल लेवल पर जाकर इनको अपने आप को प्रूव भी नहीं करना है. दे आर ओनली इफेक्टिव फॉर स्टेट लेवल. सो डिपेंड्स, तो डिपेंड करता है, स्टेट लेवल की पार्टी भी नेशनल लेवल की बन सकती है अगर उसने सारे क्राइटेरियाज मैच किए दूसरे स्टेट्स में, मतलब इजीली ये किया तो हो सकता है, और अगर नहीं हुआ मतलब ऐसा नहीं हुआ तो वो स्टेट लेवल की बनी रहेगी. सो डिपेंड करता है. एनी मोर डाउट्स?
मैम अगर दोनों लेवल पे अलग अलग पार्टीज काम कर रही तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस तो होते हैं ना बहुत सारे। बेटा फेडरलिज्म में पढ़ा ना अपन ने 1992 के रिफॉर्म्स के पहले ऐसा ही था ना कि अगर हाँ नेशनल लेवल पर कांग्रेस है और स्टेट लेवल पर बीजेपी है तो वो उनको डायरेक्ट ये कर देते थे, जैसे डिस्कार्ड हाँ, वो गवर्नमेंट ही खत्म करते थे। रेवेन्यू के हाँ, लिए वगैरह। आर्बिट्री पावर, यस, रेवेन्यू भी इन आर्बिट्री पावर यूज करते थे, डिसमिस करते थे गवर्नमेंट को सीधा कि ये गवर्नमेंट नहीं चलेगा। पावर नहीं मिलता था उनको उनको इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थे। सो 1992 में ये रिकॉग्नाइज किया गया कि ये तो इनको कुछ मतलब, अगर सेम गवर्नमेंट है तो भी थोड़ा सुनते थे, अगर गवर्नमेंट डिफरेंट है अलग अलग तो फिर उसमें इसके लिए तो उनको इंडिपेंडेंट पावर दे रखे कि कोई उसकी पावर का मिसयूज ना करे। गॉट इट नाउ? यस मैम। हाँ, चिराग ने बोला था अभी, चिराग सोनार ने, आर्मी रूल है क्या पाकिस्तान में? तो जब तक जनरल, तो इमरान खान है वहां का प्राइम मिनिस्टर, तो इसके लिए क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सो अभी आपको ये नेशनल लेवल और स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज का सेल्फ स्टडी करना है। मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया ही हुआ है, तो वैसे तो पढ़ना हो ही गया होगा सबका, पेज नंबर 80 एंड 81। ठीक है। सो 80, पेज नंबर 80 पर की ये 6 नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज है, किसी किसी के बुक में 7 है। और स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में थोड़ा सा मतलब लिखा हुआ है कि स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, कौन सी है, स्टेट में कौन सी पार्टी इफेक्टिव है, उनके सिंबल और नाम जो है वो दिए हुए, तो उसे थोड़ा